A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the various formula related to the trading account and profit and loss account, as well as we discussed the various journal entries which are related to the trading account and the profit and loss account, as well as we discuss the different types of the expense, that is a direct expense and indirect expense. Indirect expense classified into the two categories, that is a operating expense and non-operating expense. And we also discussed the format of trading account and profit and loss account, by which we can easily calculate the gross profit or gross loss or net profit or net loss with the help of the trading account or profit and loss account and the various formulas and with the help of the various formulas. So in this video, first of all, we discussed the various formulas related to the trading account and profit and loss account. It means the various formulas by which we calculate the gross profit, gross loss, or net profit or net loss, or operating profit or operating loss. And thereafter, we will move to the various practical problem by which we calculate the net gross profit, gross loss, net profit, net loss, operating profit, operating loss, and various other components which are given in the formula. So let's we start the today's class. Okay, all the best. Is a gross profit and gross loss. The formula of gross profit and gross loss is net sales minus cost of goods sold. Okay. The second formula is net profit and net loss. The formula of net profit and net loss is gross profit और लॉस जो भी हो, लॉस है तो वैल्यू माइनस में होगी, प्रॉफिट है तो प्लस में होगी, प्लस इनडायरेक्ट इनकम, यू नो वेरी वेल इनडायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है, उस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात किया हुआ है हम लोगों ने, एंड माइनस indirect expense. Indirect expense means both types of the expenses, either it is a operating expense and non-operating expense. The third and new thing is operating profit. It is very important thing. Sir, how we will calculate the operating expense? So operating profit and loss. So operating profit and loss calculate करने का दो तरीका होता है. Either we calculate the operating profit and loss with the help of the gross profit or with the help of the net profit. So it is totally depend on the question कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है तो विद द हेल्प ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट वी कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस. एंड अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटिंग अबाउट द नेट प्रॉफिट, so we calculate the operating profit and loss with the help of the net profit. So दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होते हैं and operating profit and loss should be calculated either from the gross profit or from the net profit. This is totally depend on the question. So please do not take any kind of tension. मैं दोनों फॉर्मूला आपको दे देता हूं, जैसा क्वेश्चन रहेगा आप वैसा फॉर्मूला अप्लाई करिएगा. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला होता है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस minus non-operating income. And you know very well what is non-operating expense and what is non-operating income. इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. सो देखिए यहाँ पे बस अंतर ये कि अगर हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम. और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट में हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम. यानी ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे. सीधा सीधा है, स्ट्रेट है. बट नेट प्रॉफिट में हम कान उल्टा पकड़ते हैं. यानी इसमें नेट प्रॉफिट अगर गिवन है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे. एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. नॉन ऑपरेटिंग,
तो उनके बीच में क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं कि सर ये तो आपको पूरा क्लियर है, नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक्स प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस में यू कैन सी दैट इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम मींस दैट डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव वगैरह वगैरह। And indirect expense means selling and distribution expense, office administration expense, financial expense, abnormal losses. All the types of all the types of the expense should be considered as the indirect expense. But when we are talking about the operating expense, operating income, non-operating expense, and non-operating expense, so let's we discuss it. So, what is non-operating expense? So please note down, non-operating expense equals to the एबनॉर्मल लॉस, जैसा मैंने आपको आज एकदम डिटेल में समझाया भी है। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस लाइक अ लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, ओके, एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस are treated as the non-operating expense. When we are talking about the non-operating income, so non-operating income means non-operating income equals to profit or gain on sale of assets, either it is especially either is a fixed assets or investment, non-current investment or non-current assets, either it is a tangible or intangible. अगर हम अपनी एसेट्स को सेल करके कोई प्रॉफिट एंड गेन अर्न करते हैं तो इट शुड बी टेकन एज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रॉफिट एंड गेन ऑन द सेल ऑफ द एसेट, इट शुड बी टेकन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड एज वेल एज द इंटरेस्ट received and dividend received, it should be taken as a non-operating income. If you are talking about the operating expense, so you know very well what is operating expense. Operating expense में मैंने आपको अभी पूरा चार्ट बनाकर समझाया भी है, आज के वीडियोस में भी, कल के वीडियोस में भी. So operating expense include the selling and office administration expense, selling and distribution expense, repair and yes, maintenance expense, financial expense. So all these expense should be taken as the operating expense. And if you are talking about the operating income, so it is very important how we will calculate the operating income. With income is the operating income. So basically you know very well operating income is a sales. बेसिक ऑपरेटिंग इनकम हमारी सेल ही होती है, बिकॉज हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सर्विस को प्रोवाइड करके कोई भी पैसा आता है, इट विल बी टेकन एज द ऑपरेटिंग इनकम. बट अगर हम डिटेल में बात करें कि सर क्या सेल्स के अलावा भी कोई ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, तो यस, सेल्स के अलावा भी कुछ ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, उसको आप नोट डाउन कर लो. सो ऑपरेटिंग इनकम लाइक अ कमीशन रिसीव्ड अदर देन सेल की मैं बात कर रहा हूं. सेल्स इज अ मेजर ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द बिजनेस. सेल्स तो होती ही होती है, इसलिए मैं ये बात आप बार बार रिपीट मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहना चाहिए. तो ऑपरेटिंग इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्स. उसके अपार्ट फ्रॉम द सेल्स एक बिजनेस को उसके अलावा भी कोई ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, जैसे अगर वो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है. एंड व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर, यू नो वेरी वेल. इन द बिजनेस यू कैन सी दैट व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर. जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इट इज ज्वाइंट वेंचर. तो ज्वाइंट वेंचर में जब हम काम करते हैं तो उस पर भी जब हमें कोई पैसा रिसीव होता है तो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ ऑपरेटिंग इनकम. सो दैट इज प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर. अगर आपको ज्वाइंट वेंचर से कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, अगर आपने कोई कमीशन बेस्ड इनकम की हो, कमीशन बेस्ड आपकी इनकम है जिसपे आपको काम करने पे सेल्स नहीं होता, आपको कमीशन मिलता है. जनरली कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल नहीं करते हैं बल्कि वो कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं. So that's why this types of the income will be known as the operating income. So you can see that all the formulas related to the trading account, profit and loss account,
एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम्स से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन सी दैट एट वन प्लेस. So I requested to all the students, please note down in your copy. So the first question which are related to the gross profit is calculate gross profit when and the conditions are total purchase 10 lakh, return outward is 30,000, direct expense 60,000, and direct expense is 80,000, sorry for the mistakes, and 2/3 of the goods sold, यानी टोटल गुड्स नहीं सोल्ड हुआ, सिर्फ 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड. थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. आर सोल्ड कितने पे सोल्ड हुआ? दैट इज 7,60,000. सो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. So how will you calculate the gross profit from the given information? So first of all, you can see that what is the formula of gross profit. Okay, the formula of gross profit is net sales minus cost of goods sold. Basically, if you are talking about the net sales, so sales is given. 2/3 goods हमने sold किया कितना? 7,60,000 में. So according to the formula, हमें sales की value पता है, that is 7,60,000. If we are talking about the cost of goods sold value, yani how we will calculate the cost of goods sold, the formula of cost of goods sold is opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. So you can see that इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है. कहीं भी ओपनिंग स्टॉक आप देखो तो नहीं है. बट परचेज तो गिवन है. यस सर. What is the amount of purchase? 10 lakh. What is the amount of direct expense? That is 80,000. Return outward is a means purchase return. When we purchase anything, or return outward means purchase return. So purchase का मतलब क्या होता है? Purchase minus purchase return. So the net purchase is 9,70,000. So यहाँ हम 10 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर कितना करेंगे? 9,70,000. And 2/3 of goods are sold 7,60,000. हमने पूरा गुड्स सोल्ड नहीं किया है, हमने सिर्फ कितना गुड्स सोल्ड किया है? 2/3 गुड्स, पूरा नहीं सोल्ड किया है. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर आप थोड़ा सा सोचो तो यू कैन सी दैट हमने सिर्फ 2/3 गुड्स ही सोल्ड किया है, 1/3 गुड्स सोल्ड नहीं किया है. अगर हम आपसे कहें फ्रैक्शन का होल वैल्यू होती है 1, सो अगर आपने 2/3 गुड्स वैल्यू सोल्ड कर दी तो आपके पास कितना वैल्यू गुड बचा हुआ है? स्टिल इन स्टॉक. यानी अभी आपके पास 1/3 स्टॉक सोल्ड बचा हुआ है. आपने जो सोल्ड किया है गुड्स, वो कितने में सोल्ड है? दैट इज 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 7,60,000. इट मींस आपका 1/3 स्टॉक अभी भी बचा हुआ है. इज दैट क्लियर? So if we are talking about the closing stock, so closing stock कितना बचा है आपके पास? सर 1/3 बचा है. 1/3 स्टॉक. टोटल आपने परचेस कितना किया था? 10 लाख. उसमें से आपने 1/3 स्टॉक, इट मींस 1 लाख का 1/3 कितना होता है? 3 लाख. 3 लाख अभी भी आपके पास स्टिल इन क्लोजिंग है. क्लोजिंग कितना है आपके पास? 3 लाख. ओके. तो क्या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? यस सर, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? दैट इज 970, 80 एंड द वैल्यू इज. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी कर देता हूं आपके लिए. ठीक है, इतना आप कॉम्प्लेक्स में समझेंगे आप, मैं थोड़ा सा और आपके लिए इजी कर देता हूं. When we are talking about the cost of goods sold, तो मैं entire goods का cost of goods sold निकाल देता हूँ. कैसे? Opening stock is not given. Purchase कितना किया? 9,70,000.
डायरेक्ट एक्सपेंस आपने कितना बियर किया 80,000 और सपोज आप क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास कुछ नहीं है सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल द गुड्स यानी सारा गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था दैट इज 10,60,000। अब आप खुद देखो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो सेल्स कितना लेना है आपको सेल्स लेना है द वैल्यू ऑफ द सेल्स इज 7,60,000। ये जो सेल्स है वो सेल्स सिर्फ कितने गुड्स की है 2/3 गुड्स की तो कॉस्ट भी कितने गुड्स की होनी चाहिए 2/3 गुड्स की होनी चाहिए। इट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सेल्स हमने किया 2/3 गुड्स हमने गुड्स सोल्ड कितना किया 2/3 तो वी विल फाइंड आउट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2/3 का कितना होगा 2/3 गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा टोटल गुड्स का कॉस्ट था 10,60,000 जब हमने टोटल गुड्स की यानी जितना गुड्स हमारे पास है सबका हमने कॉस्ट निकाला तो वी फाइंड दैट 10,60,000 10,60,000 पूरे गुड्स का 2/3 का निकाल लो तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9 द वैल्यू इज 3 5 15 Sorry for the calculation mistake. The cost of goods sold is 10,50,000. How? 9,70,000 plus 80,000 is 10,50,000. Okay. So total cost of goods sold कितना है 10,50,000. So cost of goods sold 2/3 goods कितनी होगी 3 3 9 3 5 15 3,50,000. So cost of goods sold 2/3 goods की कितनी होगी multiplied by 2 that is 7 lakh. Okay. So GP में से cost minus कर दो 7 lakh that is a 60,000 is a GP. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू एक बार मैं फिर थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए यू नो वेरी वेल ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल कितना गिवन है 7,60,000 कितने गुड्स का सिर्फ 2/3 गुड्स का हमने पूरा गुड्स सोल्ड नहीं किया है सिर्फ 2/3 गुड्स सोल्ड किया है तो पहले मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग तो 9,70,000 प्लस 80,000 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 10,50,000 तो 10,50,000 पूरे गुड्स का कॉस्ट है हमने सोल्ड खाली कितना किया है 2/3 तो 2/3 गुड्स का कॉस्ट कितना है 7 लाख तो 7,60,000 में 7 लाख माइनस करेंगे सो वी फाइंड दैट 60,000 एज अ ग्रॉस प्रॉफिट okay I hope it is clear for you okay let's we move to the next question so let's we move to the next question the next question is as you can see that in the first question we discussed calculate gross profit and the next question which are depend on the suppose net sales is rupees 9 lakh इसी क्वेश्चन में गिवन है that is a net sales is rupees 9 lakh and the information are GP is that is a gross profit equals to 25% on cost क्वेश्चन में कह रहा है कि gross profit is 25% on cost and we have to calculate the two things first what is the amount of cost of goods sold and what is the amount of the GP but in this question you can see that question में given है sales GP amount में given नहीं है but एक equation में given है कि GP equals to 25% on cost so first of all in this situation we assume that is let cost equals to 100 suppose अगर हम मान लें कि cost है हमारी 100 okay so our GP is 25 how 25 100 का 25% is a 25 so you know very well cost and GP को जब ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है cost and GP को जब हम ऐड कर देते हैं तो it is known as a sales so sales is 125 it means अगर हम कॉस्ट को 100 लें जीपी को 25 लें तो सेल्स इज 125 जीपी कैसे 25 है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है जीपी इक्वल्स टू 25% ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 माना जीपी इज 25% एंड सेल्स इज 125 और क्वेश्चन में सेल्स इज गिवन सो सेल्स इज 9 लाख एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या निकालना है सपोज वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 तो निकल के आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे 9 लाख को डिवाइड करो 125 से एंड मल्टीप्लाइड बाय 25 ओके 1,80,000 7,20,000 is a
cost of goods sold. So your answer is 7,20,000 is the cost of goods sold, and whereas the GP is 1,80,000. Let's we take the one more question. The next question is calculate closing stock from the following details. The next question is, I hope it is clear for you. This question is very easy. Okay, so next question is calculate closing stock from the following details. आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक. What is the amount of the closing stock? If opening stock is 30,000, अगर ओपनिंग स्टॉक है 30,000, कैश सेल्स है 70,000, credit sales is 50,000, purchase is 80,000, and rate of ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट गिवन नहीं है, दैट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट. ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन कि सर हाउ विल वी कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन दिया है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. 70,000 इज अ कैश सेल्स, 50,000 इज अ क्रेडिट सेल्स. परचेज है 80,000, ओपनिंग स्टॉक है 30,000, एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है दैट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट. तो बेसिकली मैं आपको एकदम कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं. जैसे सपोज क्वेश्चन में 20% गिवन है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा अपने माइंड में भी रख लो, कॉपी में रख लो कि अगर क्वेश्चन में 20% दिया तो 20% मतलब 1/5, 25% मीन्स 1/4, उसी तरह से 33 1/3% मीन्स 1/3. ये कुछ चीजें अपने माइंड में रख लो ताकि कैलकुलेशन आपका और इजी हो जाएगी. सपोज अगर 20% में कोई इक्वेशन दिया है तो 1/5 है, 25% में है तो 1/4 है, 33 1/3% में है तो 1/3 है. ये सब चीजें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट. इट मींस कॉस्ट का कितना है 1/3 है. सिंपल सा. आपको इस क्वेश्चन में अगर आप देखो इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट गिवन नहीं है, बट हाँ टोटल सेल्स इज गिवन. Cash sales is 70,000, credit sale is 50,000, so we can say that 1,20,000 is a sales. 70 plus 50, 120, and total sales is cash sales plus credit sale equals to the total sales. Total sales में हम cash और credit दोनों को include करते हैं. So total sales is 1,20,000. Opening stock is 30. This is this. So हम क्या करेंगे? You can see that जिस तरह से इसमें हमने लेट किया था कॉस्ट सॉल्यूशन में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से होगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ जीपी इक्वल्स टू 33 1/3% ऑन कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट कॉस्ट इक्वल्स टू 100. हम ये मान लें कि कॉस्ट हमारा कितना है 100 है, तो हमारा जीपी कितना होगा 1/3. तो 100 का 1/3 क्या होगा 33.33. ओके, सो आवर सेल्स इज 133.33. यस सर. हमें क्या कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस फॉर्मूले में आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि विदाउट कैलकुलेटिंग कॉस्ट वी कैन नॉट द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. सो सेल्स 133, सेल्स इज 1,20,000. सो क्या हम कॉस्ट नहीं निकाल सकते सर? वेरी इजी, हम निकाल सकते हैं. कैसे? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 1,20,000 divided by 133.33 multiplied by 100. Okay, that is, अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 100 by 133.33. क्लियर? सिंपल सा आपको ये समझने की जरूरत यहां पर सिंपल सा यही है कि सेल्स इज 1,20,000, सेल्स को सेल्स से डिवाइड किया 133.33 से, और हमें चाहिए क्या कॉस्ट, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया. जिस तरह से यहाँ पे हमने 9 लाख सेल्स था, सेल्स को सेल्स से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया क्या जो डिजायरेबल थी. डिजायरेबल मतलब जैसे कॉस्ट डिजायरेबल है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई, कॉस्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर हमें जीपी चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई, और अगर सेल्स चाहिए तो 125 से मल्टीप्लाई करो. 125 डिवाइड भी है, 125 मल्टीप्लाइड भी है, तो वैल्यू सेम आ जाती 9 लाख.
सो इस क्वेश्चन में कॉस्ट कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 100। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी फाइंड दैट कितना आएगा आंसर, फटाक से कैलकुलेट करिए आप लोग, देखिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 1,20,000 divided by 133.33 into 100. So the value is 90,000. Value is 90. So your cost is 90,000. Okay, is that clear? अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो वी कैन से दैट क्लोजिंग स्टॉक यहां जाए, कॉस्ट इधर आ जाएगा। सो फॉर्मूला ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज closing stock equals to opening stock, sorry, cost opening closing stock equals to cost of goods sold minus opening stock minus purchase minus direct expense। सो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो सिंपल योर आंसर विल बी, अगर आप फॉर्मूले पे देखो, मैं इस फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। दिस फॉर्मूला इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग होता है। सो वी फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 90,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 30,000 and purchase is 80,000 and सॉरी फॉर द लिटिल बिट मिस्टेक, जब क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा तो इधर माइनस था, इधर गया प्लस हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब इधर से इधर जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में। ओके, सो जब हम वैल्यू पुट करें, ओपनिंग स्टॉक विल बी 30,000, परचेज विल बी 80,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 90,000। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 80 प्लस 30 1,10,000, 1,10,000 में से 90 गया तो कितना बचा, 20,000। सो योर आंसर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। यानी इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन, बिकॉज कॉस्ट जीपी इज अ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो आपको सेल्स पता चल गई 133.33 अर्थमेटिकल में होगी। तो कॉस्ट 1 लाख, सेल्स इज 1,20,000, उसको डिवाइड किया सेल्स की फ्रैक्शन से, सेल्स के वैल्यू से, और मल्टीप्लाई किया, हमें डिजायरेबल क्या था, कॉस्ट, तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। सो वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 90,000। एंड नाउ इस जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया तो वी फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग स्टॉक इज 30,000, purchase is 80,000, direct expenses nothing, and cost of goods sold is 90,000. So 80,000 plus 30,000 is 1,10,000 minus 90,000. So now our answer is closing stock is 20,000. Okay. So you can see that in this video we discussed the various formulas which are related to the gross profit, gross loss, net profit, net loss, and the operating profit and operating loss. As well as we see that the different practical problem by which we calculate the different component of the formulas, like a closing stock, like a gross profit, like a net sales, like a cost of goods sold. बिकॉज क्वेश्चन में कोई भी चीज डायरेक्टली गिवन नहीं हो, वो थोड़ा सा आपको घुमाकर या थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके ही गिवन है। ओके, so at the end of today's video, let's we take the one more question. Okay, the last question of this video, which are related to the operating profit. I feel that कि today is sufficient for you, but एक क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं which are related to the operating profit, because हम लोगों ने operating profit के भी फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। So suppose question में is asking about the operating profit, how we will calculate the operating profit. Okay, so operating profit calculate करने के लिए
कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्लीज कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द इंफॉर्मेशन आर नेट प्रॉफिट इज 2 lakh, rent received is a 20,000, gain on sale of machine 10,000, and interest on loan 30,000, and donation 3,000. सो आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है प्लीज कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन से प्लीज कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? So first of all, you can see that in this question, net profit 2 lakh, rent received 20, gain 30, 10, interest on loan 30 and donation is 3. So you know very well, इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा? नेट प्रॉफिट से, बिकॉज यू नो वेरी वेल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों वे से कैलकुलेट किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से भी और नेट प्रॉफिट से भी. सो हाउ वी विल सॉल्व इट? द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट by net profit with the help of the net profit is net profit plus non-operating expense minus non-operating income. So इस क्वेश्चन में आप खुद देखो, net profit is 2 lakh plus non-operating expense. Non-operating expense क्या है आपके? ये दोनों तीनों आपके non-operating expense हैं. That is 10, 30, 3. So 10,000 plus 30,000 plus 3,000. इन सबको ऐड करो एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड डिडक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज अ रेंट रिसीट. सॉरी, गेन इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग. Gain is also non-operating income. Rent received and gain on sale of machine. It is a non-operating income. ये बिजनेस को चलाने से नहीं होती. And it is a non-operating expense. So non-operating expense is 33,000. Sorry for the mistake. 20,000 plus 10,000. Non-operating expense 30,000 plus 3,000 minus non-operating income is 20 and 10. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 lakh plus 33,000 minus 30,000. So your answer will be a 2,03,000 as a operating profit. Okay. So I hope today we cleared all the questions very easily. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and I request to all the students, please solve all the practical problem given in your book. Okay, thank you.